and gentlemen, a few hours after Prime Minister Narendra Modi gave the world an emphatic reminder of India's DNA of democracy amid ovation and applause, which could almost be perceived as a resounding endorsement of Modi and India's democratic credentials, a motley group of opposition parties back home met today in Patna on the pretext of salvaging Indian democracy. Democracy, which they said is one of the very few political ideas that binds these satraps, whose ties are largely defined by their differences and contradictions. The same narrative that democracy is dead in India, often pitched within and outside the country by political leaders from these opposition parties, was punctured by Prime Minister Modi from American soil in the wee hours of this morning. Listen in. जो आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के, और इसलिए हम चलते हैं। देयर विल बी एंड देयर मस्ट बी a contest of ideas at home, but we must also come together as one when we speak for our nation. We are home to all faiths in the world, and we celebrate all of them. In India, diversity is a natural way of life. Today, the world wants to know more and more about India. The other force binding the opposition is the lure of the seat of power in Delhi that has eluded them for almost a decade. Today in Patna, they stood together before cameras and vowed to find a formula to unitedly fight the national elections against Prime Minister Narendra Modi's BJP. Bengal Chief Minister Mamata Banerjee admitted that previous attempts to unite the opposition may have bombed, but expressed hope that Patna may rekindle the magic of Jai Prakash Narayan's 1974 movement that led to a united opposition ousting the then Prime Minister Indira Gandhi from power in Delhi post-emergency. Listen in. एक मीटिंग हो जाएगा तो वो तो एकदम समझिए कि वो अंतिम रूप ले लेगा। कौन कहां लड़ेंगे, क्या है, सब चीज के बारे में सब हो जाएगा। तो सहमति थी, ये हो गया है, और बहुत अच्छे ढंग से, और सब लोगों ने माना है कि हम लोग मिलकर के चलेंगे और देश के हित में है। अभी जो भी शासन में है वो देश के हित में काम नहीं कर रहे और सारे इतिहास को बदल रहे हैं। आजादी की लड़ाई को भी भुलवा देंगे। हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है, फाउंडेशन पर, इंस्टीट्यूशंस पर, आवाज पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रही है। हम में जरूर थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे। दिल्ली में हम लोग बहुत सारे मीटिंग किया, लेकिन कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकाला। अब पटना से शुरू करो। पटना से शुरुआत हुआ है, मीटिंग अच्छा हुआ है। 3 चीज नजदीक में है जो रिजॉल्व हुआ है। नंबर 1, वी आर यूनाइटेड, हम लोग एक है। दूसरी बात है, वी विल फाइट यूनाइटेडली, ये दूसरी बात है, हम लोग एक साथ में लड़ेंगे। हमको खून बहेगा बहने दो, लेकिन हम देश को, जनता को रक्षा करेगा, नहीं तो इंडिया नहीं रहेगा। अगर ये चुनाव में फिर वो लोग आ जाए तानाशाही गवर्नमेंट,
तो नेक्स्ट देश में चुनाव ही नहीं होगा। कि आइडिया ऑफ इंडिया का जितना सपोर्टरी और वोटरी जम्मू कश्मीर है, शायद कोई ऐसा नहीं होगा। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम गांधी के मुल्क को गोडसे का मुल्क बनने नहीं देंगे। और सब ये भी जानते हैं कि हम अलग अलग पार्टी के नेता हैं, स्वाभाविक है, हमारी विचारधारा अलग है, कुछ मतलब भिन्नता हो भी सकती है, लेकिन देश एक है और इस देश को बचाने के लिए, देश की एकता अखंडता कायम रखने के लिए हम एक साथ आए हैं। However, behind the facade of hope, hiding the reality of the facile fronts fissures, even before the regional satraps could arrive at any formula, the Aam Aadmi Party is believed to have put conditions before the Congress Party, asking it to join hands with the Aam Aadmi Party to oppose the centre's ordinance crippling the Delhi government's powers in the Rajya Sabha if the opposition unity formula is to materialize. In fact, just minutes after Arvind Kejriwal and Mr. Maan, the Chief Minister of Punjab, walked out of this meeting, there was a statement that came out that they would not go in for any further meeting with the Congress Party unless the Congress made its stand clear on this ordinance. Listen in to the Aam Aadmi Party spokesperson. इन 12 में से 11 पार्टियों ने ये साफ कर दिया कि हम दिल्ली के काले अध्यादेश के खिलाफ खड़े हैं, हम इसका खंडन करते हैं। केवल और केवल कांग्रेस ने अपनी सफाई नहीं दी। कुछ विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है, कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि हमारी और बीजेपी में बात भी चल रही है कि जब ये राज्यसभा में लाया जाएगा तो हम इसका वॉकआउट कर देंगे, मतलब बीजेपी को सपोर्ट कर देंगे। और अगर कांग्रेस का यही रुख रहा तो हमारे हिसाब से ऐसे कोई भी गठबंधन जिसमें कांग्रेस हिस्सा होगी, हमारे लिए पार्टिसिपेट करना मुश्किल हो जाएगा। इतना ही नहीं, अगर भविष्य में ऐसी कोई भी मीटिंग होती है जब लाइक माइंडेड पार्टी साथ में आती है और अगर कांग्रेस उसका हिस्सा रहेगी तो आम आदमी पार्टी का उसका हिस्सा रहना मुश्किल हो जाएगा। Not surprising then that the BJP found an excuse to call this an alliance of selfish politics and hunger for power as the compelling factor that the opposition parties were coming together. Listen in to the BJP's charge. स्वार्थ का ये गठबंधन जिसके निशाने पर है हिंदुस्तान, ये राजनीतिक दल जब भी इकट्ठे आए भ्रष्टाचार लाए, परिवारवाद लाए। मित्रों, आज 23 तारीख को पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है। सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को एक कहना चाहता हूं, कितने भी हाथ मिला दो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है। ये गलबाइयां कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। यही नीतीश कुमार पूरे 20 महीने जेल की शिक्षों के पीछे कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी ने डाला था, यही राहुल गांधी की दादी ने डाला था। आज पटना की धरती पर राहुल को आदर सहित उनको स्वागत करते हुए जब मैं इनकी तस्वीरें देख रहा हूं तो मुझे याद आता है कि राजनीति में क्या से क्या हो गया। Well, this may be only one of the many sticky points that is dividing the opposition satraps, which the BJP was quick to point out. The ruling party had already branded it a doomed project right from the outside. And that, ladies and gentlemen, brings me to the legitimate question on the News Hour tonight. United as anti-Modi bloc, but divided by contradictions? Is that the reality of opposition unity?